having any query, any problem, any confusion, you can directly contact me on phone also, on WhatsApp also. What is your problem? I will be always available to solve your problems from thermodynamics. Yes, it is a typical chapter. Thermodynamics, no matter, it's a typical chapter. It's not that easy, but you will find it when you will be solving the numericals. Okay, the numerical from first law of thermodynamics, that is work done. From that portion you will be solving numericals, then enthalpies, enthalpy of formation, enthalpy of reaction, enthalpy, bond enthalpy and all. Such type of questions are given in NCERT book as well as in any reference book also. So you will be solving all those questions, and Hess law, some questions from Hess law also. So these are the numericals, and then the last topic, that is second law of thermodynamics, and your Gibbs free energy, del G is equal to del H minus T del S. Here the value of del H will be given to you, temperature will be given, and entropy will be given, and you have to find out del G and decide whether the reaction will be spontaneous or not. If del G value will be coming negative, you will say the process is spontaneous. If del G value is coming positive, you will be saying that reaction is, or the process is non-spontaneous. And if the value of del G is coming to be 0, then you can say that the process is at equilibrium. Now, the question may be asked that at what temperature it will be spontaneous. So you will just see that if you will increase then the temperature, then it will be becoming negative del G, or when you will decrease the temperature, then it will be becoming negative. So to make a process spontaneous, the value of del G has to be negative. So this type of questions you will be solving from NCERT book and also the reference book. और please feel free, जब भी आपको लगे कि मुझे कहीं डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, फोन पे भी. ओके, आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज इक्विलिब्रियम चैप्टर. द न्यू चैप्टर इज इक्विलिब्रियम. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? A process is at equilibrium. कैसे आप कहते हो? एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, थर्मल इक्विलिब्रियम. व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? मान लो एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, दोनों बॉडी को आप कांटेक्ट में लाते हो एक दूसरे के, व्हाट विल हैपन? हीट विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. तो कब तक ट्रांसफर होता रहेगा? क्या कंटिन्यूअस होता रहेगा? नो. टिल एनी डाउट? कोई किसी को क्वेरी है? No, तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पर सेम ना आ जाए. ठीक है, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम आ जाएगा तो हम कहते हैं कि दोनों बॉडी अब इक्विलिब्रियम पर है एंड देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट. ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. We say that the two bodies are not now at thermal equilibrium. तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम की बातें करते हैं. थर्मल इक्विलिब्रियम एक प्रोसेस है, बहुत सारे तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं. डे टू डे लाइफ में आप शुगर सोल्यूशन बनाते हो, गर्मी के मौसम आता है तो आप लोग तुरंत बनाना शुरू करते हो, चीनी पानी का घोल, इसमें लेमन जूस डालते हो और आप लेते हो, या ग्लूकोज घोलते हो. तो आप सपोज एक एग्जांपल ले लो कि आपने एक गिलास पानी लिया, एक डेफिनेट वॉल्यूम, और आप उसमें चीनी घोलना शुरू कर दिया. 1 स्पून आपने डिसॉल्व किया, द नेक्स्ट स्पून, द नेक्स्ट स्पून, द नेक्स्ट स्पून. आखिर आप कब तक पानी में चीनी घोलते रहेंगे? कभी ना कभी तो ये प्रोसेस रुकेगा. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात में करें, सपोज कि रूम टेम्परेचर पर आपने एक गिलास पानी लिया और आप उसमें चीनी घोलना शुरू कर दिया. तो कहीं ना कहीं जा करके आपको पता चलेगा कि वो नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व, नाउ इट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. आप कहते हो या नहीं कहते हो? यस और नो? सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको कहते हैं? Nobody is speaking. no more solvent is added. हाँ, No more solute can added at a particular temperature. हाँ, सैचुरेशन पॉइंट. सैचुरेशन पॉइंट तो बहुत सारे प्रोसेस के सैचुरेशन पॉइंट हो सकते हैं. कोई आपको डांट रहा है, कहीं ना कहीं आपका सैचुरेशन आ जाएगा. उसके बाद आप रिएक्ट करोगे, बर्दाश्त करोगे, फिर रिएक्ट करोगे. दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट. होता है कि नहीं होता है?
मम्मी डांट रही है, टीचर डांट रहे हैं, बस एक लिमिट तक आप बर्दाश्त करोगे, उसके बाद रिएक्ट करते हो, मैम प्लीज आप नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, तुरंत रिएक्ट करते हो ना, सैचुरेशन आ गया, उससे ज्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। आप खाना खा रहे हो, आपका स्टमक फुल हो गया, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उससे ज्यादा नो 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 मम्मी अब नहीं, अब मैं एक भी रोटी नहीं खाऊंगा, तो आपका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो सैचुरेशन हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, सैचुरेशन पॉइंट्स आता है, तो उसी को हम एक टर्म में केमिस्ट्री में बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम जब भी हम कहते हैं कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी रिएक्शन हो, तो फॉरवर्ड मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है और हम कहते हैं द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, व्हाट डू वी मीन? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे आप चीनी पानी में घोलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आप घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, एक समय के बाद आप क्या महसूस करोगे कि नाउ इफ यू आर एडिंग एनी मोर शुगर, सॉलिड शुगर, देन इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। आप ग्लास के बॉटम में देखोगे कि अब शुगर जो है वो नीचे सेटल हो रहा है और पानी के अंदर नहीं जा रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप था, वहां शुगर के मॉलिक्यूल्स आप एकोमोडेट नहीं हो गए हैं। और अब क्या देखने को मिल रहा है कि जो शुगर आप उसमें ऐड कर रहे हो वो ऐड नहीं हो पा रहा है और वो बॉटम में सेटल हो जा रहा है। तो आप कहते हो कि ये सोल्यूशन जो है शुगर का सोल्यूशन वो सैचुरेशन पर आ गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, आप कहते हो ना। बट आप इस सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा के देखिए, व्हाट विल हैपन? कभी आपने महसूस किया है? कभी आपने अपने डे टू डे Yes, ma'am. एक्सपीरियंस किया है? Yes, ma'am. यस। क्या होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो? Ma'am, saturated converted into unsaturated. Yes, the saturated solution will become unsaturated, means more. Now you are in a position to add some more sugar. जैसे आप temperature increase करते हो, you are in a position to add some more sugar. तो एक नया saturation point आ गया, एक नया equilibrium setup हो गया। अब आप थोड़ा और temperature बढ़ा दीजिए, you are in a position to add one or two spoon more sugar. आप थोड़ा और temperature बढ़ा दीजिए, और इस तरह से जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा शुगर आप उसमें ऐड कर सकते हो। नाउ डू वन थिंग, अब इसको आप क्या करो, वापस रूम टेम्परेचर पर कूल कर दो। वापस जब रूम टेम्परेचर पे कूल करोगे तो क्या होगा, जो शुगर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन में एडेड हो गया था वो सारा का सारा रिक्रिस्टलाइज होकर बॉटम में सेटल हो जाएगा, ठीक है। This solution is known as super saturated solution. Such type of solution is known as super saturated solution. Any doubt? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। आप रूम टेम्परेचर पर हो, आपने एक ग्लास पानी लिया, एक डेफिनेट वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर रहे, आपने एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया, अब आप उसमें शुगर ऐड करना शुरू करो, एक स्पून स्टर करो, डिसॉल्व हो जाएगा, फिर एक स्पून और डालो, स्टर करो, डिसॉल्व हो जाएगा। बट कब तक? एक लिमिट के बाद आप क्या देखोगे कि नाउ इफ आई एम एडिंग एनी मोर स्पून ऑफ शुगर, तो शुगर जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, नीचे सेटल हो जा रहा है, ग्लास के नीचे में सेटल होता चला जा रहा है। तो आप कहते हो ना कि भाई अब नहीं होगा, अब हो गया, इससे ज्यादा इसमें डिसॉल्व हम नहीं कर सकते हैं। दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, अब मेरा जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। तो ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम किसके बीच में सेटअप हो रहा है, आपका जो सॉलिड शुगर जो कि नीचे सेटल कर जा रहा है और आपका एक्वस शुगर जो पानी में डिसॉल्व कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब आप चीनी डालोगे तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, इट इज रॉन्ग टू से, वो पानी में डिसॉल्व होता है, बट जो ऑलरेडी पानी में डिसॉल्व शुगर है, दैट शुगर कम्स आउट in the form of crystal and settle down. ये बात आपको समझ में आ रही है? यस मैम। ऐसे आपको देखने में लगता है कि आपने एक गिलास पानी लिया,
आप उसमें चीनी डाल रहे हो और एक सैचुरेशन के बाद आपका चीनी जो है उसमें डिसॉल्व नहीं हो। आप कहते हो कि नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व इन द सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। अब अगर मैम आप डालेंगी तो वो शुगर डिसॉल्व नहीं होगा, ये दिखता है, ये दिखता है। आप जैसे ही सैचुरेशन के बाद 1 स्पून भी आप डालते हो, वो पूरा का पूरा 1 स्पून शुगर जो है वो आपको नीचे में दिखेगा, वो नीचे में आपको दिखेगा कि वो पानी में नहीं गया, वो सारा का सारा शुगर आप स्टर करने की कोशिश भी करते हो तो भी वो सारा नीचे सेटल हो जाता है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ये आपको प्रैक्टिकली दिखता है, बट आप अगर इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि नो, जो शुगर आप एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लीजिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका तैयार हो गया। जब तक आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं, यू टेक शुगर कार्बन 12, आप शुगर लीजिए कार्बन 12 का आइसोटोप पता है ना, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, कार्बन के 2 आइसोटोप सब लोग कॉमन जानते हैं। तो आप जो शुगर लेंगे वो कार्बन 12 का शुगर आप लीजिए और आप पानी में डिसॉल्व करना शुरू करिए। आप डिसॉल्व करते 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 आपको पता चलेगा कि नाउ द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। अब मैं इसमें कार्बन 12 का शुगर डाल रही हूँ, देन द शुगर इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व। आप इसको अच्छे से फिल्टर कर दीजिए ताकि कार्बन 12 का शुगर जो नीचे सेटल हुआ था वो अब नहीं रहे। ओके, ये आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन रूम टेम्परेचर पर तैयार हो गया। नाउ व्हाट यू डू वन थिंग, नाउ यू टेक 1 स्पून ऑफ कार्बन 14 शुगर। अब शुगर आप चेंज कर दो, अब आप कार्बन 14 का शुगर ले लो और आप 1 स्पून कार्बन 14 का शुगर सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिसॉल्व करो एट द रूम टेम्परेचर। तो जब आप कार्बन 14 का शुगर डिसॉल्व कर रहे हो तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि नो मोर शुगर कैन बी सॉल्युबल, नो मोर शुगर कैन डिसॉल्व। अगर नो मोर शुगर कैन डिसॉल्व, इसका मतलब अगर मैं अब कार्बन 14 का शुगर डाल रही हूँ तो कार्बन 14 का शुगर पानी में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए और जो नीचे सेटल हो रहा है वो शुगर कार्बन 14 का ही होना चाहिए। बट आप 1 स्पून कार्बन 14 का शुगर ले और पानी में उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करें, यू विल फाइंड कि 1 स्पून शुगर नीचे सेटल हो गया। आप उस शुगर को जाके टेस्ट कर लीजिए, वो शुगर कार्बन 14 का नहीं कार्बन 12 का था। इट वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कि वो शुगर कार्बन 14 का नहीं था, वो शुगर कार्बन 12 का था। तो कार्बन 12 का शुगर सैचुरेशन के बाद आपने नहीं डाला था, आपने सैचुरेशन के बाद कार्बन 14 का शुगर डाला था, तो फिर कार्बन 12 का शुगर कहाँ से आया? So this is what I want to say कि जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर आता है तो ऐसा नहीं है कि आप अगर शुगर डालेंगे तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, वो पानी में डिसॉल्व होगा, बट जो ऑलरेडी पानी में डिसॉल्व है वो शुगर बाहर आए, वो शुगर बाहर आए। जैसे एक कमरा है, एक कमरे में 10 चेयर है, आप 10 बच्चे को उसमें डाल दीजिए, 10 चेयर पर 10 बच्चे बैठ गए। अब अगर आप चाहते हैं कि 2 बच्चा और उसमें जाए तो कैसे बैठेगा? 2 बच्चे को चेयर खाली करके निकलना पड़ेगा। तो 2 बच्चा जब चेयर खाली करके निकलेगा तो फिर 2 नया बच्चा आके उस पर बैठेगा, फिर आप 2 और नए बच्चे को उसमें डालिए तो 2 पुराना बच्चा फिर चेयर खाली करके निकलेगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, प्रोसेस कंटिन्यू होता है बट वो विजिबल नहीं होता, ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होता। चेंज आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आपको बस ऐसा लगेगा कि अब कोई भी न्यू चेंज आप महसूस नहीं कर रहे। जैसे मान लो कि आप एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, जैसे सपोज कि एक कंटेनर है और बीच में एक स्लिट है और दोनों तरफ 2 गैसेस, एक ब्राउन गैस NO2 और एक तरफ ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। 2 अलग गैसेस, एक कलरफुल गैस, एक कलरलेस गैस, और बीच में एक स्लिट लगा दिया। ठीक है, अब दोनों गैस 2 चैम्बर में है, फिर आप स्लिट को हटा दीजिए। जैसे ही आप स्लिट को हटाएंगे व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आपको बिल्कुल दिखेगा कि ब्राउन गैस के मॉलिक्यूल्स कलरलेस गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमिंगल हो रहे हैं, कलरलेस गैस के मॉलिक्यूल्स ब्राउन गैस के साथ इंटरमिंगल हो रहे हैं। वो आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आपको ऑब्जर्वेबल दिखाई, पूरा ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, बट एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा ब्राउन गैस और व्हाइट गैस एकदम यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाएंगे और टोटल जो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी है वो लाइट हो जाएगी। अब इसके बाद
ऐसा नहीं है कि इंटरमिक्सिंग रुक जाएगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस ये रैंडम प्रोसेस है, ये कंटिन्यू होगा, बट आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, वो ऑब्जर्वेशन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक बार अचीव हो जाता है तो कोई नया ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको नहीं दिखता है। आपको लगता है कि नाउ इट इज ओके, नो मोर चेंजेस टेकिंग प्लेस, बट ऐसा नहीं है। चेंज होता है बट द चेंज इज नॉट ऑब्जर्वेबल। उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे मैंने आपको गैस का एग्जांपल दिया, वैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए और KMnO4 का एक छोटा सा क्रिस्टल उसमें डाल दीजिए। KMnO4 पिंक कलर का, पर्पल पिंक कलर का होता है, और एक छोटा सा क्रिस्टल आप उसमें डाल दीजिए। धीरे 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 आपको पर्पल पिंक कलर का क्रिस्टल मूव करता हुआ पूरे पानी में दिखेगा। वो जा रहा है, कहीं 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 मिक्सअप हो रहा है, और तब तक आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यस इंटरमिंगलिंग हो रही है। बट एक समय के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा कि पूरा का पूरा जो आपका ग्लास था वो पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक पर्पल कलर से भर गया। अब उसके बाद भी मॉलिक्यूल्स इंटरमिंगल हो रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है, बट आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, कहीं भी आप बात कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां पर आपका ऑब्जर्वेबल डिजायरेबल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेबल चेंज जिसको आप ऑब्जर्व करें, चेंज तो होता है बट आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो आपको नहीं पता चलेगा कि कोई चेंज हो रहा है। जैसे एक ग्लास पानी में आपने चीनी डाला तो पूरा का पूरा ग्लास का पानी जो है, आप जैसे ही चीनी डालते हो आप पानी को टेस्ट करना, पानी को टेस्ट करोगे तो आपको लगेगा कि जहाँ चीनी के कंसंट्रेशन ज्यादा, जब आपने स्टर नहीं किया तो नीचे चीनी बैठा हुआ है, वहां पे चीनी का कंसंट्रेशन हाई है, तो ऊपर का पानी और नीचे के पानी में आपकी मिठास में फर्क होगी। बट आप उसको अच्छे से जब स्टर कर देंगे तो पूरा का पूरा ग्लास यूनिफॉर्मली स्वीटनेस प्रोड्यूस करेगा। मतलब अब जो मिक्सिंग हुई है शुगर की पूरे वाटर मॉलिक्यूल में, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हुई है, उसके बाद फिर आपको कोई भी ज्यादा कम मिठास नहीं लगेगा। अब आप एक बार सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद चाहे आप चीनी कितना भी डालो, उससे ज्यादा मीठा होने का इंटेंसिटी आपको नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, जहां इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है द रेट ऑफ फॉरवर्ड is equal to the rate of backward direction. Rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. मैं अभी आपको बता रही थी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको कहते हैं? सपोज मैं आपको एक सोल्यूशन शुगर का ही बता रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें आप शुगर डालिए और डालते 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 एक सिचुएशन आएगा कि नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व। वो सैचुरेशन पर आ गया। अब आप थोड़ा सा शुगर सोल्यूशन को हीट कर लीजिए। जैसे ही आप थोड़ा सा शुगर सोल्यूशन को हीट करेंगे, यू विल बी इन अ पोजीशन टू ऐड सम मोर शुगर टू इट, और वो डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीज कर जाता है। शुगर सोल्यूशन का रेट जो है डिसॉल्व होने का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। आप थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दीजिए, you will be in a position to add some more sugar. अब आप क्या करिए कि फिर से वापस ठंडा कर दीजिए सोल्यूशन को, तो रूम टेम्परेचर पर ला करके आप ठंडा कर दीजिए। जैसे ही आप उसको रूम टेम्परेचर पर ला के ठंडा करेंगे, यू विल ऑब्जर्व कि जो एक्स्ट्रा शुगर आपने जो ऐड किया था अपॉन हीटिंग, वो सारा का सारा शुगर रिक्रिस्टलाइज होकर बॉटम में सेटल कर जाएगा। एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ। आप क्या करिए, एक सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन बनाइए और उसको बना करके और उस सोल्यूशन को फ्रिज में डाल दीजिए। डीप फ्रीजर में नहीं, जहाँ की वो फ्रोजन हो जाए। फ्रोजन होगा तो ये नहीं दिखाई देगा आपको। आप क्या कीजिए, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाइए, 1 कप पानी में 2-3 चम्मच डाल करके आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाइए, और सैचुरेटेड सोल्यूशन बना करके उसको फ्रिज में डाल दीजिए। फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज के अंदर, डीप फ्रीजर में नहीं। और 2-4 घंटे के बाद फिर वो सोल्यूशन को आप बाहर निकालिए। यू विल ऑब्जर्व कि नीचे कुछ क्रिस्टल्स नजर आएंगे आपको। यानी कि टेम्परेचर आप घटाते हो तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीज कर जाता है।
और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी वगैरह में भी ह्यूमिडिटी आप पढ़ते हो ना। आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आज ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी से आप क्या समझते हो? द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन एयर। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज्यादा है तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में कम है तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी कम है। अब आप देखिए कि अगर पहले से ही एयर में वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा होगी, यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, तो स्वेटिंग भी ज्यादा होती है। आप ऐसा फील किए हो? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, आप स्वेट ज्यादा फील करते हो कि बहुत पसीना चल रहा है। क्यों पसीना चल रहा है? क्योंकि पसीना तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमारे बॉडी से हमेशा वाटर जो है वो इवोपोरेट होता रहता है हमेशा। बट क्या होता है कि जो हमारे बॉडी से पानी निकलता है वो एयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब इवोपोरेट करके एयर में चला जाता है। बट एयर पहले से ही अगर ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर होल्ड कर रहा है तो वो और ज्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका पसीना, आपके ड्रॉपलेट्स आपके पूरे बॉडी पे नजर आने लग जाता है। क्योंकि ह्यूमिडिटी तो पता आपको लगेगा कि ओ बहुत गर्मी लग रही है, ह्यूमिडिटी लग रहा है, पसीना आ रहा है। तो ये एक कारण होता है। आप इवोपोरेशन भी आप जानते हो। व्हाट इज इवोपोरेशन? इवोपोरेशन, एनीबॉडी in the class can explain exactly what is evaporation? कोई बता सकता है what is evaporation? ma'am, when water is converted into vapor. Water is converted into vapor. This is called evaporation. What is boiling? And the change of liquid into vapor. What is boiling then? Yeah, ma'am. Ma'am, boiling is a condition when the external pressure is equal to the internal pressure of the liquid. Yes. The vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. Then the liquid starts boiling, we say. So boiling point is that temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Boiling is a bulk phenomenon. Boiling क्या होता है? Bulk phenomenon. यहाँ भी process तो वही है. In boiling also, liquid changes into vapor, but it happens throughout the bulk. पूरा का पूरा जो कंटेनर में पानी है, पूरे टॉप लेयर, बॉटम लेयर, मिडिल लेयर, जहां से भी आप कह लीजिए, हर जगह से पानी एक साथ कन्वर्ट होने लगता है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. दैट इज बॉइलिंग. और ये कब होता है? when the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure, जिस प्रेशर पर आप उसको बॉइल कर रहे हो. इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन में भी फेनोमेनन तो यही है, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, बट इट इज अ सरफेस फेनोमेनन. इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेनन है एंड इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर. ये कोई फिक्स टेम्परेचर पर नहीं होता है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन में भी लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, बट इट चेंजेस ओनली फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द सरफेस. मतलब जो लिक्विड आपने रखा है कंटेनर में, उसके अपर लेयर से ही वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज. ठीक है, तो ये सरफेस फेनोमेनन होता है. इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर. बट बॉइलिंग क्या होता है? बल्क फेनोमेनन होता है एंड इट टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर which is called its boiling point, and it is that point at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. तो ये मैं आपको बता रही थी कि evaporation क्या है. तो अब आप मुझे बताइए, evaporation, rate of evaporation किस पर डिपेंड करेगा? Temperature, wind speed. सरफेस एरिया एक मैंने सुना, yes it is correct. दूसरा? Ma'am, temperature. टेम्परेचर. वेरी गुड. अगर आप टेम्परेचर Ma'am, हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है. यस, गर्मी ma'am, में. wind speed. हाँ, वेरी गुड. विंड का स्पीड. अब एक एक करके हम लोग आते हैं. सबसे पहले किसी ने मुझे कहा सरफेस एरिया. यस, अगर आप एक कटोरी में पानी लेते हो और एक थाली, वही पानी आप एक थाली में ले लेते हो,
तो आपका देखो कि पानी किस में पहले इवोपोरेट कर जाएगा। आपने एक कटोरी पानी एक छोटे से कटोरे में लिया है और एक कटोरी पानी आपने एक थाली में ले लिया, परात में ले लिया। तो सरफेस एरिया जब आप उसको थाली में डालते हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और क्या होता है कि ये सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस का लेयर, अपर लेयर ऑफ द सरफेस अगर इंक्रीज करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स चेंजेस इनटू वेपर वो भी इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा किसी ने बताया टेम्परेचर। यस, इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आप कपड़ा फैलाइए गर्मी के मौसम में और आप कपड़ा फैलाइए जाड़े के या मौसम में। किस मौसम में आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है? ऑफ कोर्स गर्मी में, ये तो आप सब जानते हो, ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रैक्टिस है। गर्मी के मौसम में कपड़े सूखने में टाइम नहीं लगते क्योंकि इवेपोरेशन का रेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। तीसरा किसी ने मुझे बताया, तीसरा पॉइंट क्या बताया? एक टेम्परेचर बताया, Wind एक speed. सरफेस एरिया बताया और एक स्पीड Wind speed. विंड स्पीड। विंड स्पीड भी ये फैक्टर है जो इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज करता है। जैसे आप एक कमरे में फैन ऑफ करके कपड़ा फैला दीजिए, दूसरे कमरे में फैन ऑन करके कपड़ा फैला दीजिए, आप देखिए किस रूम में कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। ऑफ कोर्स आपका ये प्रैक्टिकल है, डे टू डे लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है कि जिस कमरे में फैन चल रहा है वहां कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन वहां ज्यादा होगा। आप बता सकते हो क्यों ज्यादा होगा? जब विंड का स्पीड होता है ना तो क्या होता है कि जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट है वो वहां से स्कैटर्ड हो जाता है दूसरी जगह और एयर में मॉइस्चर आपका कम हो जाता है अगर फैन चल रहा है। ये विंड का स्पीड है। तो ये 3 पॉइंट्स है। और भी कोई पॉइंट है रेट ऑफ इवेपोरेशन को डिसाइड करने के लिए? Humidity. Types of matter. Ma'am, humidity. ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी है। अगर ऑलरेडी पहले से मॉइस्चर एयर में ज्यादा है तो आपका इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, तभी तो पूरे चेहरे पे पसीना आ जाता है। और ह्यूमिडिटी कम है तो आपका इवेपोरेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब इवेपोरेशंस के पॉइंट है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं इन सब चीजों को सुनते समझते इक्विलिब्रियम पर आते हैं। तो इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं, अलग अलग तरह का इक्विलिब्रियम होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज मतलब लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एंड वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड, ये भी एक इक्विलिब्रियम है। मान लो आपका पानी है, इवेपोरेट करके वेपर बना रहा है और ये क्लोज कंटेनर में है तो वेपर भी कंडेंस करके लिक्विड बना रहा है। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम पर रहेगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ये राजीव तो मैं आपको बता रही थी कि इवेपोरेशन या कोई भी इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो हमारा ऑब्जर्वेबल चेंज, जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाता है तो वहां पे ऑब्जर्वेबल चेंज आपको नहीं महसूस नहीं होता। जैसे आप एक परफ्यूम का बॉटल कहीं खोलते हैं तो बहुत तेज आपको स्मेल आती है, खुशबू आती है परफ्यूम का, बट धीरे धीरे वो परफ्यूम का बॉटल पूरे कमरे में फैल जाता है, फिर पूरे कमरे में एक जैसी खुशबू आने लगती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह बहुत ज्यादा और किसी एक जगह बहुत कम। अगर आप किसी गार्बेज एरिया से गुजरते हैं तो बहुत बदबू सा आता है, और जितना गार्बेज के नजदीक आप पहुंचते हैं, गार्बेज जितना सड़ रहा होता है और जितना नजदीक आप उसके पहुंचते हैं आपको उसकी बदबू ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, क्योंकि वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं है, वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो पूरी जगह एक जैसा ही आपको स्मेल दिखाई देगा, महसूस होगा। तो इक्विलिब्रियम कभी भी हम बात करते हैं, जैसे आपने आइस लिया, आपने वाटर लिया, आइस भी आपने लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर भी लिया और दोनों को आपने मिक्स कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, आइस मेल्ट करेगा पानी में और पानी फ्रीज करेगा आइस में, सो दे विल बी एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह से एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जो है
एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑल्सो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर ऑल्सो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहाँ वाटर के दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म भी और वेपर फॉर्म भी, और ये दोनों फॉर्म इक्विलिब्रियम पर रहता है। मतलब जितना पानी कन्वर्ट करेगा लिक्विड में, जितना लिक्विड पानी, लिक्विड के फॉर्म में जितना पानी है, अगर उसमें से कुछ कन्वर्ट करता है वेपर फेज में, तो वेपर का भी उतना पार्ट कन्वर्ट कर जाएगा लिक्विड के फेज में, एंड द टू विल बी एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इक्विलिब्रियम के, जो मैंने शुगर का सोल्यूशन बताया। ये सॉल्ट भी आप ले सकते हो, सॉल्ट पानी में डाल रहे हो और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है। तो जब वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है तो वहां पर इक्विलिब्रियम होता किसके बीच में? एक्वस शुगर और सॉलिड शुगर के बीच में। शुगर के कुछ पार्ट्स पानी में डिसॉल्व हो चुके हैं और शुगर के कुछ पार्ट्स अनडिसॉल्व नीचे सेटल कर गए हैं। अब अगर सॉलिड शुगर पानी में जाता है तो पानी में ऑलरेडी डिसॉल्व शुगर सॉलिड बनकर बाहर निकलता है। अगर आप इसको स्टर करते हैं तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है, मतलब जितना पानी में होल्ड करने की कैपेसिटी थी शुगर की वो होल्डेड हो गया, उससे ज्यादा होल्ड अप नहीं हो सकता है। अगर इससे ज्यादा आप डालेंगे तो वो बाहर आ जाएगा और वो नीचे सेटल कर जाएगा। देन देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड शुगर एंड एक्वस शुगर। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो जनरल थोड़ी सी मैंने डिस्कस किया है। व्हाट डू वी मीन बाय इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम की बातें की, फिजिकल इक्विलिब्रियम की बातें की, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम भी हम आपको बता सकते हैं, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा। अगर आप ये रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में लेते हो तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से कंबाइन करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट देता है। अगर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन वी से दैट द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा तो आपको कोई भी चेंज महसूस नहीं होगा, क्योंकि अगर एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर रहा है तो एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट भी दे रहा है। तो आपको कोई भी रिजल्टेंट चेंज रिएक्शन साइड या प्रोडक्ट साइड में नहीं नजर आएगा। आपको लगेगा जैसे सब सेम है। जैसे मैंने कहा, एक कमरे में 20 कुर्सियां हैं और 20 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मैं बाहर से 2 बच्चे को भेजती हूँ तो वो 2 बच्चे कैसे अकोमोडेट होंगे? ऑलरेडी जो 20 बच्चे बैठे हैं उनमें से 2 बच्चों को अपना सीट खाली करना होगा, 2 बच्चे कमरे से बाहर निकलेंगे, 2 सीट वैकेंट होगा, 2 नए बच्चे उस पर आ जाएंगे। अब आपको क्या लगेगा? आपको कुछ चेंज महसूस नहीं होगा। पहले भी 20 सीट फिल्ड थे, अब भी 20 सीट जो है वो फिल्ड है, तो ऑब्जर्वेबल चेंज 0, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। बट यदि बाहर से आप बच्चा नहीं भेज रहे हैं और अंदर से बच्चा खाली हो जा रहा है तो आपको कुछ वैकेंट सीट दिखाई देगा। और अगर अंदर से बच्चा खाली बाहर नहीं जा रहा और बाहर से कुछ बच्चे आ जा रहे हैं तो कुछ खड़े बच्चे आपको नजर आएंगे। बट अगर ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर आ गया, यानी कि 2 बच्चे बाहर जा रहे हैं, 2 बच्चे अंदर आ रहे हैं, फिर 2 बच्चा बाहर जा रहा है, 2 अंदर, तो आप अगर किसी भी समय कमरे में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कमरे में 20 के 20 चेयर पे बच्चे दिखाई देंगे। आपको कोई भी चेंज वहां महसूस नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको ये समझाने के लिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। आपका ये आज होमवर्क है कि यू टेक आउट योर बुक, एनसीईआरटी बुक, और थोड़ी सी आप इनिशियल 2-3 पेजेस जो हैं इक्विलिब्रियम पर आप रीडिंग डालेंगे, सिर्फ रीडिंग डालेंगे, और आप समझने की कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं कल पढ़ाऊंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो चिल्ड्रन, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आज के क्लास में या प्रीवियस क्लास में। अच्छा, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं 3 सेक्शन को कंबाइन करके लेती हूँ।
11A, 11B, 11C। और मेरे ख्याल से 11A में भी 45-46 है, 11B में भी 45 या 46 है, और 11C में 43। तो मोर और लेस मतलब 130 स्टूडेंट्स के लगभग मैं मान के चलती हूँ कि बच्चे हैं। फिर मुझे क्यों स्क्रीन पे दिख रहा है कि सिर्फ 45 ही स्टूडेंट क्लास करते हैं? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? टेल मी। कोई बोलेगा? क्यों सिर्फ 40-45 बच्चे क्लास करते हैं? ऑलमोस्ट एक सेक्शन। Nobody will speak out. अगर आप अपना प्रॉब्लम बताओगे तभी तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों क्लास अटेंड नहीं करना चाहते हो या नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। आपके दिमाग में क्या ये बैठ गया है कि मैं सैटरडे संडे वाला एग्जाम दूंगा और दूंगी या मुझे अटेंडेंस मिल जाएगा? क्या आप इस तरह से सोच रहे हैं? यस, अभिषेक कुमार, अमन राज, अनिमेश, अंकिता, कोई नहीं है? सब मोबाइल ऑन करके घर में घूम रहे हो? आशुतोष, नो मैम। नो मैम, है मैम। बोलो क्या फील करते हो? What is- मैम यहीं पर है मैम। यहीं पे हो ना? मोबाइल ऑन करके घर में घूम नहीं रहे हो? नो मैम, पढ़ रहे मैम, जो पढ़ा रही मैम। मैम रोज घूम घूम के बोर हो गए मैम। रोज घूम घूम के बोर हो गए इसलिए अब बैठ के पढ़ते हो। थैंक यू। अब ये बताओ कि अब एक क्लास इतना कम बच्चा क्लास क्यों कर रहा है? क्या रीजन है? पता ना मैम। पता नहीं मैम, हम लोग तो रोज मैम मैं तो रोज पढ़ता हूँ क्लास में। मैम हम लोग को आइडिया नहीं है। आप लोग रोज क्लास कर रहे हो और बच्चे क्यों क्लास नहीं कर रहे हैं इसका आइडिया आपको नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उन पेरेंट्स से बात करती हूँ जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेके मुझे पता चल जाएगा कि एक वीक में कितने बच्चों ने क्लास किया, एंड देन आई विल टॉक टू द पेरेंट्स। आपका प्रॉब्लम अगर है